So in the last class, I have discussed the measurement of capacitance using first method is called de Sauty bridge. Okay, and in the normal de Sauty bridge, we have measured the unknown capacitance having internal resistance is equal to 0. Okay, but practical capacitance have their some internal resistance. So that means they have some dielectric losses. So that means then de Sauty bridge is modified for the measurement of capacitance having internal resistance. So again, we have in the last class we taught about the modified de Sauty bridge for the measurement of unknown capacitance having internal resistance R1. Okay, so now the next method for the measurement of unknown capacitance is called sharing bridge. I am audible to everyone? Yes, sir, audible. Okay, so the next method for the measurement of capacitance is called sharing bridge. So just like de Sauty bridge, using sharing bridge, you can measure any unknown capacitance C1. Suppose unknown capacitance C1 with their internal resistance is R1. So in the branch 1, the unknown capacitor is connected in branch 1. That means unknown capacitance C1 and with their internal resistance R1. Okay, and suppose someone is a standard and in the branch 2 there is a standard loss free capacitor C2 is connected in branch 2, and branch 3 there is a non-inductive standard resistance R3 connected, and in branch 4 a variable capacitance connected in parallel with the variable resistance. So this is the circuit diagram of de Sauty bridge. So again, at a balance condition, first we have to find out the impedance of each branch. So the impedance of first branch is equal to R1 plus 1 by j omega C1, and impedance of branch 2, that means Z2 is equal to 1 by j omega C, Z3 is equal to R3, and Z4 is equal to R4 by 1 plus j omega C4 into R4. At a balanced condition, and you know at a balanced condition, that means when the bridge is balanced, that means there is no current flowing through the galvanometer or null detector. So at balanced condition, Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3. Okay, so you know Z1 is equal to R1 plus j omega 1 by j omega C1, and Z4 is equal to R4 by 1 plus j omega C4 R4, and Z2 is equal to 1 by j omega C2 and R3. So again, if you multiply the term and equate the real part and imaginary part from the left hand side to right hand side. So if you equating the real part and imaginary part, then R1 C4 is equal R1 small R1 R4 is equal to R3 R4 C4 by R2, and if you equate the imaginary part, then C1 is equal to that means the C1 is equal to C2 into R4 by R3, and internal resistance R1 is equal to R3 into C4 by C2. So that means the expression of C1 is depend on C2 R4 by R3, and expression of internal resistance of capacitors R1 is depends on the C4 R2 and R3. That means the expression of balance equation of R1 and C1 are independent to each other. That means if you want to find the R1, then you have to control C4, and if you want to find the unknown capacitance C1, then you have to control that means C1 is depend on R4, and small R1 is depend on C4. That's why we have a two variable in the element in the branch 4.
That means one variable capacitor and one variable capacitor. So by varying capacitors, you can find out the unknown resistance R1, and by varying variable resistance R4, you can calculate unknown capacitance C1. So the two balance equation are independent to each other, and the dissipation factor of unknown capacitance, that means D1 is equal to 10 del 1 omega C1 into R1. So that is equal to omega C4 into R4. So any doubt in the sharing bridge? Hello, any doubt in sharing bridge? So now, any doubt in sharing bridge? That means sharing bridge is used for the measurement of unknown capacitance with their internal resistance. Sharing bridge is used in the sharing bridge. There is a two variable element. One is capacitor and another is resistance. They are connected in parallel. By varying capacitance C4, you can calculate unknown resistance R1, and by varying R4, that means resistance across the fourth arm, you can calculate the unknown capacitance C1. So now, please draw the circuit diagram of sharing bridge. Hello. Hello. So that means for the measurement of unknown capacitance, we have two methods. First method is called de Sauty bridge, and second method is called sharing bridge. In de Sauty bridge, first you have to calculate the unknown capacitance having internal resistance is equal to 0. But if there is an internal resistance across internal resistance of capacitance, then we have to modify the bridge, is called modified de Sauty bridge. And second method for the measurement of capacitance is called sharing bridge. So please draw this circuit diagram so that I can explain the phasor diagram of sharing bridge. ड्रॉ कर लिए? काहे तोड़ी रे? इतना अच्छा फूल उसमें अच्छा नहीं लग रहा था खिला हुआ. Please mute yourself. Nisha Miranda, please mute yourself. कितना अच्छा लग रहा था खिला हुआ. Nisha Marandi, please mute yourself. So you have any doubt? You have any doubt in the expression of sharing bridge? So hello. Hello. Is my screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So now first we have to explain the circuit diagram, that means phasor diagram of sharing bridge. So suppose this one is the I1. I1 is the branch current of branch 1, and suppose this part is I1 into
R1 and voltage drop across C1 is equal to I1 by omega C1, and the phasor sum of I1 R1 plus omega I1 by j omega C1 is equal to E1. Any doubt? Hello. That means E1 is equal to I1 into R1 plus I1 into R1 plus I1 by j omega C1. Any doubt? Hello. So at balance condition, E1 is equal to E2, that is equal to I2 by j omega C2. Yes or no? So अगर तुम्हारा E2 यहाँ पे है, ये तुम्हारा E2 है, so I2 क्या होगा? I2 इससे 90 डिग्री पर लीड करेगा, तो ये तुम्हारा I2 का डायरेक्शन हो जाएगा. एनी डाउट? ये तुम्हारा 90 डिग्री इससे लीड करेगा, क्योंकि E2 इज इक्वल टू I2 बाय j ओमेगा C2 है. अगर I2 यहाँ पे रहेगा तभी तो वो E2 के बराबर आएगा. सो I2 यहाँ पे हो जाएगा. एनी डाउट? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो, Yes, sir. हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? मेरा आवाज आ रहा है तुम्हारे पास? Yes, sir. Then why are you not replying? सर मेरी भी Okay. अभी आवाज. ओके, सो अभी इतना दूर किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना दूर समझ में आया फेजर डायग्राम? Yes, sir. सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे ना कि नहीं किए थे? सो I2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा. नाउ अब हमको बताओ कि I1 एंड I4, क्योंकि देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिटवीन द गैल्वेनोमीटर, सो I1 इज इक्वल टू I4. दैट मींस I4 भी इसी डायरेक्शन में होगा. एनी डाउट? एंड अगर I4 इधर ही होगा तो E3 एक्चुअली, जस्ट वेट, सब मार्कर खराब हो गया है. ओके, सो E3 E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ, yes, sir. E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E3 इज इक्वल टू हो जाएगा I3 इंटू R3. Any doubt? No, sir. And you know, at a balanced condition, E3 is equal to E4. Yes, जैसे sir. बैलेंस कंडीशन में E1 is equal to E2 होता है, उसी तरह से बैलेंस कंडीशन में E3 is equal to E4 होगा. सो E4 का क्या होगा एक्सप्रेशन? E4 में दो पार्ट है, दो पैरेलल पार्ट है. वन कैपेसिटर, सेकंड वन इज रेजिस्टेंस. सो Yes, sir. वहां पर क्या हो जाएगा? सपोज जो टोटल I4 करंट है, ओमेगा C4. yes, so I see I4 have two parts. Okay, I4 ये यहाँ पे दिख रहा है. एक्चुअली हमारा मार्कर खत्म हो गया है, तो हम अगले दिन क्लास में मार्कर लेके आएंगे तो बेटर रहेगा. सो I4 is equal to, I4 have two parts, IC plus IR,
क्योंकि यहाँ पे पैरेलल सर्किट है। सो I4 का दो करंट पार्ट होगा, वन IC दूसरा IR। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो। सो फाइनली तुम्हारा ये तुम्हारा E3 हो गया और E1 हो गया। जस्ट वेट। सो हाँ, यहाँ पे क्या बताएं। सो E4 का टू पार्ट होगा, IC डिवाइडेड बाय ओमेगा C4 इक्वल टू IR into R4. Any doubt? IR into R4. Any doubt? No, sir. थोड़ा सा मार्कर के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज एनी डाउट? No, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ तुम्हारा E3, यहाँ पर E3 है एंड E1 है। सो इस दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? E1 प्लस E3। E1 प्लस E3 किसके बराबर हो जाएगा? E1 प्लस E3 किसके बराबर होगा? E1 plus E3 वो सर वो तो सम हो रहे हैं ना। यस, E1 प्लस E3 इक्वल टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। टोटल अप्लाइड वोल्टेज E। एनी डाउट? सो E हो जाएगा। एनी डाउट? हेलो, एनी डाउट? नाउ अब यहाँ पे देखो I4 का डायरेक्शन इधर है। सो यहाँ पर I4 में दो पार्ट है, एक IC और एक IR है कि नहीं है? सो IC का डायरेक्शन किधर होगा? IC का डायरेक्शन होगा जस्ट उससे 90 डिग्री लीड करेगा। हेलो, सो यही इसका फेजर डायग्राम है। एनी डाउट किसी को? No, sir. ओके, वेरी गुड। सो नाउ तो ये हमारा हो गया शेयरिंग ब्रिज। दैट मीन्स हम लोग फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस we have a two method. First one is called de Sauty bridge and second method is called sharing bridge. So sometimes sharing bridge is used for the measurement of capacitance in a high voltage circuit. So you know on the basis of voltage range we have classified the transmission line or the generation, that means high voltage, that means हम लोग जो voltage का range है 0 to 22 kV, 22 से 132 kV। so जो high voltage में capacitance यूज होता है for in a transmission line, और बहुत जगह पर हम लोग जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हाई वोल्टेज सर्किट में कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। सो दैट मीन्स जहां पर भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर, दैट मीन्स कैपेसिटेंस हैविंग वोल्टेज रेटिंग इन द रेंज ऑफ हाई वोल्टेज रेटिंग में, सो उस जगह पे हम लोग उसको हाई वोल्टेज, वहां पर जो शेयरिंग ब्रिज होगा वहां पर उसको हम लोग हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज कहेंगे। दैट मीन्स शेयरिंग ब्रिज दैट यू ओके। सो उसका जो डायग्राम रहता है, सो सर्किट डायग्राम या उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो नॉर्मल ब्रिज से थोड़ा अलग रहता है। दैट मीन्स इट इज एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, कैपेसिटेंस, बुशिंग, insulating oil and other insulating material.
सो यहाँ पे देखो द स्पेशल फीचर्स ऑफ हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज आर, हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज समझ में आ गया। दैट मीन्स सपोज अ कैपेसिटर जिसका हमको अननोन कैपेसिटर है और वो उसका जो रेटिंग है वो इन द रेंज ऑफ हाई वोल्टेज रेंज में है। यू नो कैपेसिटर का रेटिंग क्या होता है? दुकान में अगर तुम कैपेसिटर खरीदने जाओगे तो दुकान में क्या बताओगे, क्या बोलोगे? हेलो हेलो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेटिंग ऑफ एनी कैपेसिटर? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? अनिमा कुमारी, हेलो हेलो, Yes, sir. suppose what is the electrical rating of any capacitor? Electrical rating of any capacitor is their capacitance and their voltage rating. कभी भी हम लोग दुकान में कभी भी कैपेसिटर खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स फैराड का और इतना वोल्टेज रेटिंग का एक कैपेसिटर दीजिए। सो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेटिंग साइज ऑफ द कैपेसिटर जो होता है वो डिपेंड करता है। साइज ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करता है, जितना हाई रेटिंग करेगा साइज उसके हिसाब से उसका बढ़ते जाएगा। सो उसी तरह से जो हाई वोल्टेज सर्किट में यूज होता है एनी कैपेसिटर, उसका मेजरमेंट के लिए जो हम लोग शेयरिंग ब्रिज करते हैं उसको कहते हैं हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। सो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है? सो उसमें हम लोग यहाँ पर ए हाई वोल्टेज सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसफार्मर यूजुअली एट 50 हर्ट्ज। देयरफॉर यहाँ पर जो तुम्हारा रहेगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो डिटेक्टर यूज करेंगे वो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है वो बहुत हाई वोल्टेज रहता है और जनरली कैपेसिटेंस तुम्हारा इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 50 हर्ट्ज रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो डिटेक्टर यूज करेंगे वहाँ वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। तो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है? तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर जो होता है उस समय वहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, तो हमको पता चल जाता है कि ये शरीर ये सर्किट जो है वो क्या है, बैलेंस है। सो एट बैलेंस कंडीशन देयर इज नो वाइब्रेशन इन द गैल्वेनोमीटर दैट इंडिकेट्स द ब्रिज इज बैलेंस। तो नाउ उसके बाद हम लोग अर्थ स्क्रीन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू अवॉइड error caused due to intercapacitance between the high arms and low arms। तो हम लोग यहाँ पर इसको अर्थिंग कर देते हैं ताकि एक कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर के बीच में किसी तरह का इंटर कैपेसिटेंस क्रिएट नहीं हो, और इस तरह का सर्किट जो है हम लोग यूज करते हैं फॉर द measurement of high voltage capacitance। So any doubt up to that? Hello? 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 Yes, sir. Okay. So that means हमारे पास measurement of capacitance का दो मेथड था। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डिसॉर्टी ब्रिज, सेकेंड मेथड इज कॉल्ड शेयरिंग ब्रिज। और एंड शेयरिंग ब्रिज जो है उसको हम लोग इवन शेयरिंग ब्रिज जो है हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर को। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ
mutual inductance. Measurement of mutual inductance. Okay, so first of all, mutual inductance किसको कहते हैं? Anyone? What do you mean by mutual inductance? हेलो, अभी तक हम लोग जो भी इंडक्टेंस मेजर करने का प्रोसेस सीखे थे, दैट मींस मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे, एल। ओके, सो सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड था। फर्स्ट मेथड था मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, उसके बाद मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, है ना, और भी पढ़े थे, एंडरसन ब्रिज पढ़े थे, और क्या क्या ब्रिज पढ़े थे हम लोग? एंडरसन ब्रिज पढ़े थे, उसके विंड ब्रिज पढ़े थे, है ना। सो नेक्स्ट में उसके बाद हम लोग इंडक्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पढ़े, उसका 2 मेथड था। क्या कहते हैं? फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डिसॉर्टी ब्रिज एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड शेयरिंग ब्रिज। हेलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, what do you mean by mutual inductance? Hello, what do you mean by mutual inductance? Anyone? Mutual inductance किसको कहते हैं? Hello, I am audible to you or not? Anima Kumari, Anima Kumari, Ayush Kumar, Yes, sir. I am audible to you or not? Yes, sir. Then why are you not replying? सर आवाज थोड़ा तेज सर। तो देर के बाद ही तुम रिप्लाई करो। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस? प्रणब कुमार डे, प्रणब कुमार डे, Yes, sir. what do you mean by mutual inductance? सर म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ सर कॉइल में होता है सर। Characteristics of पेयर ऑफ कॉइल। pair of coils. What do you mean by characteristics of pair of coil? सर जिसमें सर मान लीजिए सर एक कॉइल में सर हम लोग करंट देते हैं सर, उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, तो कॉइल 2 में भी सर तो करंट इंड्यूस होगा सर, करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में भी सर। So I think you have a very little knowledge of mutual inductance. So mutual inductance का कॉन्सेप्ट जो है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की ही वर्किंग मतलब कॉन्सेप्ट पर काम करता है, और तुम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का आइडिया नहीं है। तो हम बताते हैं, व्हेन अ टू इंडक्टर, suppose one inductor having internal having inductance is equal to L1 and second inductor having inductance जो है उसका इंडक्टेंस जो है L2 है, वो उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। सो जब हम उसमें करंट पास करते हैं, सो L1 जो होता है, सो L1 सपोज जो पहला इंडक्टर है, सो यहाँ पे जब जैसे करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। जब ये मैग्नेटिक और दूसरा, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहा है। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी तुम्हारा ये है जिसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। सो अगर यहाँ का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स
जाके इंड्यूस होगा दूसरे कॉइल में और वहां पर एक वोल्टेज इंड्यूस होगा आइदर इन द पॉजिटिव और इन द नेगेटिव, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सो इसके कारण जो यहाँ पर इस दोनों के बीच में जो इंडक्टेंस क्रिएट होगा, दैट मींस फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 जो कि दूसरे कॉइल में जाके लिंक होता है और वहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, सो उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो जिस वहां पर जो हो रहा है प्रॉपर्टी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम डॉट कन्वेंशन कहते हैं, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इवन इन गेट एग्जाम, इस डॉट इन कन्वेंशन पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। सो देखो अगर जैसे मान लो कि दो इंडक्टर है हमारे पास L1 एंड L2 और उसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। सो अगर हमारा करंट दोनों जैसे यहाँ पे देखो ये जो डॉट है, डॉट इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ कॉइल। कॉइल का जो उंड है वो क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब भी डॉट कन्वेंशन रहे, अगर सेम डायरेक्शन से करंट इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, सो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होता है उसमें +2M होता है। अगर वो ऑपोजिट रहेगा तो तुम्हारा -2M होगा। तो सपोज यहाँ पे L1 है और यहाँ पे दूसरा L2 है और यहाँ पे डॉट जो है देखो यहाँ से सपोज यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, सो यहाँ पे डॉट से इंटर कर रहा है और दूसरा कॉइल में भी डॉट से इंटर कर रहा है, तो दोनों ही डॉट से इंटर कर रहा है। सो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू होगा L1 + L2 + 2M। इन द सेम दूसरा कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे जो करंट इंटर कर रहा है, पहला कॉइल में डॉट से लीव कर रहा है और दूसरा कॉइल में भी डॉट से लीव कर रहा है, दैट मीन दोनों में इस डॉट से ही लीव कर रहा है, तो उस समय इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L1 + L2 + 2M। सो अगर आइदर डॉट से दोनों में डॉट से ही इंटर करेगा या डॉट से लीव करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो +2M होगा। अगर एक कॉइल में डॉट से इंटर करता है, दूसरे कॉइल में डॉट से लीव करता है या उल्टा होता है, सो उस समय इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू -2M हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो पहला कॉइल में डॉट से करंट इंटर कर रहा है और दूसरा में डॉट से लीव कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L1 + L2 -2M हो गया। ओके, सो और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी डॉट जो है वो डॉट से लीव कर रहा है और दूसरे कॉइल में डॉट से इंटर कर रहा है ना। सो इस कंडीशन में भी इसका टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 + L2 -2M हो जाएगा। एनी डाउट? सो इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इस तरह का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए इवन गेट में भी क्वेश्चन आता है। तो तुम उससे पता लगाना है कि तुम्हारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा और वहां पर डायरेक्शन ऑफ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, व्हाट इज वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है। सपोज किसी सपोज यहां पर क्या होगा बोलो, टोटल वोल्टेज, तो यहां पे होगा L1 × di/dt प्लस L2 × di/dt प्लस 2 × M × di/dt। ओके, सो इस तरह से वोल्टेज इक्वेशन भी हम लोग लिखते हैं और इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो गेट के एग्जाम में भी आता है ना, जिसको तुम लोग को बनाना है। सो फिलहाल हम उसके बाद सो दैट मीन्स हम लोग को अभी हम लोग मेजरमेंट में है। सो हम लोग को पढ़ना है द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो दैट मीन्स हम लोग को हाउ यू कैन मेजर the value of M using the bridge. So the first method, first bridge is called Heaviside mutual inductance bridge for the measurement of mutual inductance. Okay, so हम लोग कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। so in the figure 1 देखो यहाँ पे हमारा डॉट कन्वेंशन, अगर डॉट कन्वेंशन जो है अगर कॉइल का ओरिएंटेशन एक बार इधर रखते हैं दूसरे बार चेंज कर देते हैं, सो तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा।
सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों को यूज करते हो, सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, m इक्वल टू 1/4 इंटू एल इक्विवेलेंट 1 माइनस एल इक्विवेलेंट 2। दैट मीन्स एक बार हम लोग जो है मतलब जो कॉइल का जो कनेक्शन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एडिटिव हो, और एक दूसरे कंडीशन में हम लोग उसको इस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे कि जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसमें अपोज करे। तो वहां पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m, और दूसरे कंडीशन में हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m। सो वहां से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे, दैट मींस m इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू L इक्विवेलेंट 1 माइनस 1 L इक्विवेलेंट 2। सो नाउ सपोज हमारे पास हमको मेजर करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है L1, सपोज यहाँ पे पहला कॉइल L1 है और दूसरा कॉइल L2 है, और इस दोनों के बीच में हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस M को मेजर करना है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग ब्रिज में यूज करते हैं उसका नाम है हेविसाइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज। उसको ब्रिज का नाम क्या है, हेविसाइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes. So this bridge is used for the measurement of mutual inductance M. Suppose M is any unknown mutual inductance that you have to be measured. L1 and L2 are known self inductance of coil 1 and coil 2, and